So welcome dear students. Let us continue with numerical methods. Today we are going to see the numerical methods last point, and that is nothing but Euler's method, modified Euler method, and Runge-Kutta method. So modified Euler method is similar to the Euler's method, so that is not a big deal. We will get for only one problem for that. Runge-Kutta method and Euler's method that we are going to see seriously. So let us start. The formula which is used for Euler's method is, concentrate on this, yn plus 1 is equal to yn plus h into f of xn comma yn. अब what is this h? h means जो जंप करने के लिए आपको दिया हुआ है वो, yn मतलब पुराना y, yn plus 1 मतलब नया y, f of xn comma yn मतलब the function which has been given to you. Mind it well that this function is applicable for differential equations. That means here the differential equation that we are going to solve by Euler method. This is the mandatory thing that we have to see. ठीक है, प्रीवियस इसमें अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन थे तो वो हमने अलग अलग देखा. अब नाउ जैसे पिकार्ड्स इक्वेशन के साथ हम आ गए यहाँ पर, तो हम आगे डिफरेंशियल इक्वेशन के पास आ गए. सो लेट अस कंटिन्यू विद द थिंग. The first problem which is in front of us is, using Euler's method, find an approximate value of y corresponding to x equal to 1. This is important. X equal to 1, given that dy by dx equal to x plus y and y equal to 1 when x equal to 0. So these are very much important things जो हमारे सामने अभी है. यह है टारगेट. This is given values. That means this is x0 and y0. ठीक है. So before starting the problem, let us first of all write down that dy by dx equal to f of xy, which is equal to x plus y. That means this is our system. Now we are not going to mention dy by dx every now and then. We will just deal with f of xy. ये बात मार्क करके रखना कि हम सिर्फ और सिर्फ f of xy की बात करेंगे, दूसरे किसी की नहीं. इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो जाने के बाद अब जरा ध्यान से देखना, when y equal to 1, when x equal to 0. अब ये x equal to 0 तब y equal to 1, इसका मतलब क्या? जब x equal to 0 तब y equal to 1, मतलब ये मेरा इनिशियल x 0 हुआ और ये मेरा इनिशियल y 0 हुआ. ये बात क्लियर रखना. ठीक है. अब where h is h is equal to 0.1, ये h is 0.1 कहाँ पर है? जरा मैं प्रीवियस सिस्टम पे चले जाऊं तो जरा ध्यान से देखना कि h आपको दिया हुआ है क्या? यहाँ पर नहीं. जिससे इंक्रीमेंट होने वाला है वो है h. मैं चाहे तो h को 0.1 ले सकता हूँ, चाहे तो h को 0.2 ले सकता हूँ, चाहे तो h को 0.5 ले सकता हूँ. जितना प्रिसाइज लूंगा उतना मुझे इस इक्वेशन का करेक्ट आंसर मिलेगा. सो h इक्वल टू 0.1. आप 0.2 भी ले सकते हैं. सेम प्रॉब्लम. दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू that you have to perform the same problem by using h equal to 0.2. अब हम कैसा फॉर्मूला करेंगे? The Euler's formula is given by, what is the Euler's formula? yn plus 1 equal to yn plus h into f of x comma xn comma y. अब this xn comma yn, what is this xn comma yn? Just apply the formula. xn comma yn means x plus y. That means the updated formula will be yn plus 1 equal to yn plus h into xn plus y. Mark my words. yn plus 1 equal to yn plus h into xn plus yn. इतना हो गया. अब इमीडिएटली यहाँ पर वो टेबल लिख दिया. व्हाट इज दैट टेबल? n. n मीन्स नंबर ऑफ इटरेशंस पकड़ के चल सकते हैं. xn, जिस वे से xn आपका इंक्रीज हो रहा है वो xn. सिमिलरली yn x एंड y भी लिख सकते हैं. अब ये f of xy फार्मूला dy by dx इक्वल टू xn plus yn फार्मूला लिखा मैंने. अब यहाँ पर देखो, ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए. अब इसकी जगह हमने क्या किया है? न्यू y इक्वल टू ओल्ड y प्लस 0.1 इंटू dy by dx. मतलब किसकी वैल्यू?
जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू ये dy by dx की वैल्यू या f of x y की वैल्यू वॉट एवर इट इज। क्लियर हुआ इतना? अब नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द थिंग्स। मार्क माय वर्ड्स, जरा ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी तरफ आइडेंटिफाई करते रहना, अपना कैलकुलेटर अपने साथ रखना और उसको एनालाइज करना, बाद में इसको पॉज करना और वैल्यू चेक करना आंसर सही है गलत। सबसे पहले n इक्वल टू जीरो, इटरेशन जीरो से स्टार्ट हो, x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू वन, कहाँ से निकाला मैंने, ये देखो ये x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू वन, यहाँ से लिया है, अंडरस्टूड। चलो अब आगे बढ़ता हूँ, x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू वन, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जीरो प्लस वन, वन, एक्स एन प्लस वाई एन, जीरो प्लस वन, वन। अब फार्मूला क्या कहता है, न्यू वाई इक्वल टू ओल्ड वाई प्लस 0.1 into dy by dx. What is old y? 1. What is 0.1? As it is. What is dy by dx? क्या मिला इसका आंसर? 1. ये आया 1. वैल्यू पुट करने के बाद नया आंसर मिला 1.10. Once this is 1.10, I am just substituting that 1.10 in this equation. Now अब इसको इंक्रीमेंट किया है x से, इसको x को इंक्रीमेंट किया। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, मुझे सिर्फ x को इंक्रीमेंट करना है, y को इंक्रीमेंट नहीं करना है। y जो आएगा वो मुझे एज इट इज वहां पर लिखना है, अंडरस्टूड। वरना आप कहोगे कि नहीं सर यहाँ पर भी 1 से इंक्रीज हुआ, यहाँ पर भी 1 से इंक्रीज हुआ, तो दोनों केसेस सेम है, तो हम उसको ले सकते हैं कि नहीं, आप नहीं ले सकते, ठीक है। ये और ये सेम नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। जरा ध्यान से देखोगे तो 0.1, 1.1। अब इसकी जगह मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो क्या हुआ, दोनों का एडिशन आने के बाद 1.2। अब 1.2 आने के बाद फिर से ओल्ड वाई क्या हुआ, अब ये रहा ओल्ड वाई, अब ये मेरा ओल्ड वाई नहीं है, समझे। 1.1 प्लस 0.1 इंटू 1.2, आंसर 1.22। अब नया y क्या मिला, 1.22। अब ये 1.22 एक बार मिला, जस्ट सब्सटीट्यूट दैट न्यू y इनटू ओल्ड इक्वेशन। अब ये 0.2, इसको और एक बार इंक्रीमेंट किया 0.1 से, ये देखो 0.1 से इंक्रीमेंट किया। 0.1 से इंक्रीमेंट करने के बाद क्या मिला, 0.1 से इंक्रीमेंट करने के बाद अब जब मैं इसको वैल्यू फिर से पुटअप करता हूँ, तो वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या मिला, दोनों की एडिशन 0.2, 1.22, 1.42, इन दोनों की एडिशन 1.42 आने के बाद फिर से यही इक्वेशन, व्हाट इज ओल्ड वाई 1.22, 0.1 as it is, what is the value of f of x y dy by dx 1.42, new y 1.32। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ही जब हम आगे करते जाएंगे तो हमें कुछ न कुछ मिलता जाएगा, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 0.3, एक बार फिर से इंक्रीमेंट किया, क्लियर कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना, फिर से इंक्रीमेंट किया 0.3, 0.3 इंक्रीमेंट करने के बाद नई वैल्यू क्या मिली 1.36। सो व्हाट इज द आंसर, 0.3 प्लस 1.36, 0.3 प्लस 1.36, आंसर 1.66, ये आया 1.66। 1.66 आने के बाद अब मुझे उस इक्वेशन में उसको पहले पुट करना है, 1.36 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.66, फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आया 1.526। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2 जरा सा एक्स्ट्रा है, हाँ? ये बात याद रखना, 1 पॉइंट, ये 2 नहीं है ना, ये बात याद रखना, दिस इज नॉट 2। क्लियर, आंसर आया 1.526 यानी 1.53। अब ये 1.53 मैंने यहाँ पर पुटअप किया, x और एक बार इंक्रीमेंट किया, ऐसा करते गया तो मुझे वैल्यू मिली 1.72। ग्रेजुअली 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 जब मैं ये आगे बढ़ता जाऊँ तो वैल्यू क्या मिली, लास्ट वैल्यू ध्यान से देखना, जब 10 की यानी जब x की वैल्यू 1 है तब मुझे वैल्यू मिली 3.18। जब x की वैल्यू क्या है 1 है तब मुझे वैल्यू मिली 3.18, दैट मीन्स 3.18 इज द फाइनल आंसर फॉर x इक्वल टू 1, फॉर x इक्वल टू 1। अब दिस इज माई व्यू, अंडरस्टूड।
अब हम एक काम करेंगे, हम तुरंत एक चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे, हम प्रॉब्लम यही करेंगे, फर्क सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पर 0.2 रखेंगे, यानी 0.1 की जगह 0.2 और 5 ही इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। चलो हम एक काम करते हैं, 0.5 रखते हैं, सो दैट वी विल से 0.5 और आंसर का फर्क देखते हैं क्या आता है क्या नहीं। ठीक है, तो पहली वैल्यू 0 एज इट इज, यहाँ पर वैल्यू 1 एज इट इज, यहाँ पर भी वैल्यू 1 एज इट इज, दोनों का एडिशन, यहाँ पर वैल्यू क्या हुई, चेंज हो गया, यहाँ पर 0.5, तो आंसर क्या होगा, लेट अस चेक, 1 प्लस 0.5 इंटू 1 इक्वल टू 1.5, इसका आंसर आया 1.5। अब 1.5 आ गया, तो अब मैं ये वैल्यू यूज करूंगा, तो पहली वैल्यू 0.5 x की वैल्यू, यहाँ पर अब ये वैल्यू हो गई 0.5, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 1.5, दोनों की एडिशन 0.5 प्लस 1.5 आ गई 2, सो हम यहाँ पर है डियर स्टूडेंट, ये आ गई वैल्यू 0.5, यहाँ पर मैं था, इसकी वैल्यू आ गई 1.5, यहाँ पर भी हमने क्लियर किया था, दोनों की एडिशन आ गई 2, यहाँ पर आई है 2। अब मैं फिर से कैलकुलेशन करूंगा, क्या होगा वो 1.5 पुराना y प्लस 0.5 इंटरवल इंटू 2 जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, टोटल आंसर आया 2.5। 2.5, अब ये 2.5 वैल्यू मैं फिर से यहाँ पर यूज करूंगा, ये हो गया 1, इंक्रीमेंट करने के बाद ये हो गई 2.5, आप चेक करो 1 प्लस 2.5, आंसर आया 3.5, यहाँ पर ही रुकेंगे हम, कितना आंसर आया 3.5, प्रीवियस इसमें आंसर कितना आया था 3.18, इसमें आंसर कितना आया 3.5, व्हाट इट इंडिकेट्स, हमें ये रफ आंसर मिला है, ये आंसर कैसा मिला है, फाइन आंसर मिला है, ये बात क्या था, अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रफ आंसर एंड फाइन आंसर, अब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, जब मैं जल्दी ले लेता हूँ तो मुझे रफ आंसर मिलता है, और जब मैं थोड़ा सा और उसको खींचता हूँ तो मुझे कौन सा आंसर मिलता है, फाइन आंसर मिलता है। सो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर फाइन आंसर्स। ठीक है, सो ये बात क्लियर हो गई होंगी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे यही मेथड मैंने अभी आपको समझाई, आगे हम और एक प्रॉब्लम देखते हैं, सेम स्ट्रक्चर सेम प्रॉब्लम, लेकिन फर्क इतना है कि x 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, x 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक आ रहा है 2 तक आ रहा है, y की वैल्यू 1 है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू x प्लस 2y है। अब ये फार्मूला आपको पता है बड़ा आसान है, मैंने 2 बार प्रॉब्लम समझा के दिया है आपको, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी प्रॉब्लम आप करोगे, जरा पॉज करके लिख लेना सब इसको, ये भी प्रॉब्लम आप करोगे, आसान है इसलिए, ये भी प्रॉब्लम आप करोगे, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम आप करोगे, ये एक्सपेक्टेशन है, आप आराम से कर लीजिए इसको, हम बाद में इसको आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम बड़ा आसान। अब हम मॉडिफाइड आयलर मेथड के पास जाते हैं। ये मॉडिफाइड आयलर मेथड है क्या, मेरे बच्चों मेरे ध्यान से बात सुनना, ये मॉडिफाइड आयलर मेथड यानी रिफाइंड सिस्टम है। यानी क्या होता है, कभी कभी ध्यान से देखोगे तो आपकी माताजी जब देखोगे कभी सिस्टम से, आपकी माताजी जब चाय चाय बनाती है, तो वो चाय बनाने के बाद उस चाय को हमें क्या करना पड़ता है, छानना पड़ता है।
तो उसको किस वे से करती है, उसको फिल्टर करना पड़ता है। तो कभी कभी देखोगे तो वो फिल्टर कभी सिंगल फिल्टर होता है, कभी डबल फिल्टर होता है, कभी ट्रिपल फिल्टर होता है। तो यही डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल यूलर मेथड और मॉडिफाइड आयलर मेथड। मॉडिफाइड आयलर मेथड मतलब वो प्रॉब्लम तब तक सॉल्व करते रहो जब तक आपको फिल्टर ना मिले। सिस्टम वही, प्रॉब्लम वही, मेथड वही, सब कुछ वही, फर्क सिर्फ इतना है कि जब तक आपको रिफाइंड आंसर ना मिले तब तक उसको करते जाओ। यानी क्या करूं, आप उस वाई को छोड़ो मत, यानी आप ये वाई तब तक फॉलो करो जब तक वो वाई आपको ताल ठोक के परफेक्ट ना मिल जाए। दिस इज द सिंपल मेथड, सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग मॉडिफाइड आयलर मेथड। तो अब ध्यान से सुनो, हम इस मेथड को आगे परफॉर्म करने जा रहे हैं। मैं ये मेथड के वर्किंग रूल पे नहीं जाता, मैं सीधा सीधा प्रॉब्लम पे जा रहा हूँ सो दैट आप इसको एनालाइज कर पाए, बहुत आसान है। अब ध्यान से देखना ये क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वही प्रॉब्लम है। x0 इक्वल टू 0 एंड y0 इक्वल टू 1, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यूज करना है x इक्वल टू 0.1, ठीक है, h इक्वल टू 0.05 अब दिया है यहाँ पर, और मुझे वैल्यू किसके लिए निकालनी है, 0.1 के लिए वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे वैल्यू किसके लिए निकालनी है, 0.1 के लिए वैल्यू निकालनी है, क्लियर है ना, 0.1 के लिए वैल्यू निकालनी है, 0.1 के लिए, ठीक है। अब ये 0.1 की वैल्यू मुझे आइडेंटिफाई करनी है, इतनी बात क्लियर रखो। चलो अब मैं इस सिस्टम की तरफ जाता हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो, दिया हुआ प्रॉब्लम है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई दिया हुआ प्रॉब्लम, x0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 1, h इक्वल टू 0.05 हम जानते हैं। अब x1 इक्वल टू x0 प्लस h, व्हाट इज दिस x1 इक्वल टू x0 प्लस h, बच्चों ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, जो आपने प्रीवियस इसमें किया वही है ये। यानी क्या, आप बार बार उसको जरा प्रीवियस टेबल में बता दूं आपको, आप इसमें ये इंक्रीज करते थे ना, इससे ये इंक्रीज करते थे ना, इससे ये इंक्रीज करते थे ना, फिर ये इंक्रीज करते थे, ये क्या है, ये आप उसको इंक्रीमेंट करते थे ना। तो पहला x0, फिर ये x1, फिर x2, फिर x3, फिर x4, फिर x5, ऐसा ही स्ट्रक्चर आप यूज करते थे ना, वही तो स्ट्रक्चर की ये बात कर रहा है। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, हम इसको टेबल में भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड। अगर आप टेबल में ना भी लिखना चाहे, ऐसा भी लिख चाहे तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट, अब फॉर्मूला क्या कहता है, मॉडिफाइड आयलर मेथड बाय आयलर्स मेथड, सबसे पहले वैल्यू निकाल लो इसकी, ठीक है। अब x1 इक्वल टू 0.05 बाय यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, अब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अब आयलर मेथड क्या कहती है, y1 इक्वल टू y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 y0, तो सबसे पहले y1 की वैल्यू निकाल दो, y1 की वैल्यू क्या आई, 1.05, फिनिश। अब ये 1.05 आई है ना, तो अब हमें इसी के साथ परफॉर्म करना है, ठीक है। हमारे लिए काम कौन सी वैल्यू है, हमारे लिए 0.05 आई x1 की वैल्यू, उसके बाद इनिशियल वैल्यू थी 0, इनिशियल वैल्यू थी 1, नई वैल्यू मिली 0.05, फिर ये मिली 1.05, फिनिश। ये चार वैल्यूज हैं हमारे पास, हम चलो काम से लग जाते। तो पहला अप्रोक्सीमेशन क्या है, पहला अप्रोक्सीमेशन है y1 इक्वल टू, y1 का 1 है, यानी ये y1 में भी पहला अप्रोक्सीमेशन। फार्मूला क्या कहता है, y0 की जगह y0, h की जगह h बाई 2। अब ये कहाँ से आया, ये फार्मूला है मेरे बच्चों, ध्यान से देखना, अप्रोक्सीमेशन के फार्मूले, ठीक है। देखो जरा सा यहाँ पर दिख रहा होगा, अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय
ये देखो ये फार्मूला है, ठीक है। हम्म, हम्म। तो अब जरा ध्यान से देखना, मैं इरेज कर रहा हूँ सब इसको। y1 ऑफ 1 यानी पहली y1 की जो पहली इनिशियल फर्स्ट फेज वैल्यू है विदाउट रिफाइंड, ठीक है। हाँ, ये विदाउट रिफाइंड है, ये रिफाइंड का पहला स्ट्रक्चर फर्स्ट फिल्टर। फर्स्ट फिल्टर क्या कहता है, y0 प्लस एच बाई टू एफ ऑफ x0 y0 प्लस एफ ऑफ x1 y1, फिनिश। एफ ऑफ x0 y0 मतलब x0 y0 0 प्लस 1 x1 y1 x1 एंड ये y1 0.05 1.5 सब का आंसर मिला के y1 की आंसर वैल्यू क्या हुई, y1 इज इक्वल टू, हाँ पहला फिल्टर 1.0525, ठीक है 1.0525। अब मैं दूसरे फिल्टर के पास जाता हूँ। अब दूसरा फिल्टर यूज करते हुए मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, इस y1 का जो था ना, ये मैं पहले वाला y1 हटा के पहला फिल्टर लगा दूंगा यहाँ पर, अंडरस्टूड। यानी अब मैं और रिफाइन करने का सोचूंगा। यानी अब फार्मूला क्या बना, ध्यान से देखना, पिछला फार्मूला क्या था वो भी ध्यान से देखना। पिछला फार्मूला था सिर्फ y1, नया फार्मूला क्या है, y1 का पहला फिल्टर, अंडरस्टूड। उसके आगे क्या होगा, y1 का दूसरा फिल्टर, उसके आगे क्या होगा, y1 का तीसरा फिल्टर। कब तक करेंगे ऐसा, जब तक दो y1 की वैल्यू क्या ना मिले, सेम ना मिले, तब तक ये सेम प्रोसीजर हम करते जाएंगे, रिपीट 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 रिपीट। ध्यान से सुनिए, तो y1 का सेकंड फिल्टर क्या कहता है, y0 प्लस एच बाई टू एफ ऑफ x0 y0 प्लस एफ ऑफ x1 y1 का पहला फिल्टर। तो ध्यान से देखना, 0.05 डिवाइडेड बाई टू, ब्रैकेट में 0 प्लस 1 जो पहली वैल्यू थी एज इट इज, प्लस x की वैल्यू 0.505 एज इट इज, प्लस 1.0525 जो नई वैल्यू मिली। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आंसर क्या मिला, 1.0526 मिला। अब ये 1.026 कहां पर पुट करनी है, फिर से यहां पर पुट करनी है, और फिर से ये बार प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करनी है। यानी अब यहां पर नीचे देखो, थर्ड अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस 0.05 0 प्लस 1 0.05 प्लस 1.526 पुट करने के बाद फिर से आंसर क्या मिला, 1.0526। Since these two values are same, we will consider that this is the final value of y1. यानी when x equal to 0.05, y equal to 1.0526. This is x1, this is y1. Final. Understood? f1, x1, y1. Final. अब ये फाइनल मिला तो अब हम पूरा फोकस शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। अब नेक्स्ट स्टेज मतलब क्या, अब आपको सब सिस्टम पता है क्या नहीं, ठीक है। यच पता है, सब पता है, सब पता है, वो विदाउट फेल हम अब आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब फर्क सिर्फ इतना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब फर्क सिर्फ इतना है कि जहां जहां हम ये 0 0 लिया करते थे ना, अब वहां पर हम ये दोनों लेंगे, और नए जो भी होंगे वो देखा जाएगा। क्लियर हुआ इतना, ध्यान से सुनना आपको। अब y2 इक्वल टू 1.0526 प्लस 0.05 प्लस x1 प्लस y1। अब ये कहां से लाया सर आपने, देखो बच्चों, प्रीवियस इसमें भी मुझे पहले यही फॉर्मूला यूज करके सिस्टम बनानी पड़ी थी ना इनिशियली, अब वही सिस्टम मैं बना रहा हूं नेक्स्ट इसमें भी इनिशियली। सो व्हाट इज दैट फार्मूला, द फार्मूला इज, देखो y2 इक्वल टू y1 प्लस एच इंटू एफ ऑफ x1 कॉमा y1। वैल्यूज पुटअप करने के बाद मुझे y2 क्या मिला, y2 मिला 1.1077, खत्म। अब y2 का पहला फिल्टर y0, अब ये y0 मतलब वो y0 नहीं 1, दिस y0 इज नया y0 जो पहले y1 था, h बाई टू एफ ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस एफ ऑफ x1 कॉमा y1। ये कौन से, x0 कॉमा y0 मतलब 0.05
and 1.0526. अंडरस्टूड? वैल्यूज पुटअप कर दी. 1.0526 h by 2 as it is 0.05 divided by 2, 0.05 plus 1.0526. अब ये नया मिला सो 0.1 1.1077. पूरी वैल्यू पुट करने के बाद आंसर मिला 1.1103. अब ये 1.1103 कहाँ पुटअप होगा? ये यहाँ पुटअप होगा. अंडरस्टूड? ये कहाँ पुटअप होगा? यहाँ पुटअप होगा. फर्क सिर्फ इतना है बच्चों, आप इसको y2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अंडरस्टूड? इसको y2 लिख सकते हो डायरेक्टली, इसको आप लिख सकते हो. इसको x1 लिखने से यहाँ पर भी आप उसमें जो चाहे वो आप करेक्शन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. आपको नॉमेनक्लेचर जो यूज करना है कीजिए. मैंने फिर से वैल्यू पुटअप करने के बाद देखो y0 इक्वल टू 1.0526 प्रीवियस वैल्यू, h इक्वल टू h by 2 0.05 डिवाइडेड बाई 2, 0.05 and 1.0526 as it is. x1 की वैल्यू 0.1, y1 फिल्टर की वैल्यू 1.1103. आंसर आया 1.1104. रिपीट करूं तो 0.0526 फिर से रिपीट करूं तो आंसर मिल रहा है 1.1104. यानी दिस इज द फाइनल आंसर 1.1104. अब मैं एक बात बताऊं बच्चों, 1.1104 ये y2 का आंसर मिला. किसके लिए मिला? 0.1 के लिए मिला. अब लेटेस्ट चेक. 0.1 के लिए 1104. मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.1 एंड 1.1104 और मैं बच्चों प्रीवियस इस पर जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना. यही था ना वो प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया था x प्लस वाई वाला. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.1? जरा देखो यहाँ पर 0.1 की वैल्यू क्या मिली. 0.1 की वैल्यू मिली 1.22. क्या मिली वैल्यू? 1.22. या यहाँ पर देखो 1.2. अब ये 1.2 है ना, ये बेसिकली 1.1104 है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयलर मेथड एंड मॉडिफाइड आयलर मेथड? हमें और रिफाइन आंसर मिलेगा मॉडिफाइड आयलर मेथड. अंडरस्टूड? सो दिस इज द वर्ड. क्लियर हुआ इतना? तो यही प्रोसेस आपको बार बार करनी है, यानी आपको सिर्फ यूलर मेथड बार बार परफॉर्म करनी है. फर्क सिर्फ इतना होगा, मॉडिफाइड आयलर का फॉर्मूला आपको यूज करना है. एक प्रॉब्लम मैं आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पर. पिछले प्रॉब्लम भी जो प्रीवियस हिस्ट्री पे जो प्रीवियस आयलर वाले प्रॉब्लम थे वो सब प्रॉब्लम आपको मॉडिफाइड आयलर से करना है. क्लियर हुआ इतनी? ठीक है. ये होने के बाद और ये भी एक प्रॉब्लम करना है. ठीक. dy बाई डी एक्स इक्वल टू एच प्लस 3y, ये भी एक प्रॉब्लम करना है. सेम मेथड सेम स्ट्रक्चर. प्रॉब्लम एक बार ध्यान से देखना. सिर्फ आपको पुरानी वैल्यूज तब तक यूज करनी है जब तक उसका फुल एंड फाइनल आंसर ना मिले. एक बार फुल एंड फाइनल आंसर मिल गया तो पुरानी वैल्यूज बाकी सब छोड़ देनी है, सिर्फ उसकी फाइनल वैल्यूज लेके नए प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं. क्लियर? अब मैं आगे बढ़ता हूँ कहाँ पर? रंगे कट्टा मेथड पर. अब ये रंगे कट्टा मेथड सबसे आसान और 101% एग्जाम में आने वाली मेथड है, जिसको अब ये बात ध्यान से देखना कि ये है उसके 6 फॉर्मूले, ये है उसके 4 फॉर्मूले जो हमें यूज करने हैं. 1 K1 K2 K3 K4 और फाइनल K. बेसिकली 5 फॉर्मूले. ठीक है. सो व्हाट इज K1? h इंटू एफ ऑफ x0 y0. व्हाट इज K2? h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h बाई 2 y0 प्लस K1 बाई 2 K1. What is K3? h into f of x0 plus h by 2 y0 plus K2 by 2. What is K4? h into f of x0 plus h y0 plus K3. और फाइनल K का आंसर क्या? 1/6 K1 2 K2 2 K3 plus K4. कोई भी प्रॉब्लम आए हमारे सामने, हमें बस इन प्रॉब्लम में उसको आइडेंटिफाई करना है, पुटअप करना है और आंसर देना. ध्यान से देखना. अप्लाई रंगे कट्टा मेथड टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y when x equal to 0.2. given that dy by dx equal to x plus y when y equal to 1 x equal to 0. चलो इतना सब होने के बाद अब जरा ध्यान से देखना ये सिस्टम हो हम जाएंगे कैसे. dy by dx equal to x plus y. dy by dx equal to x plus y लिख दिया तो y0 equal to y equal to 1 when x0 equal to x equal to 0. h equal to 0.02 दिया हुआ है, यानी हमें ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करना है. ठीक है. चल अब इतना देने के बाद when h equal to देखो बच्चों h equal to
ठीक है ना, जो है सो है, हम जाएंगे उसी मेथड से जाएंगे। ठीक है, हाँ, उसको ये 0.2 भी कैसे आइडेंटिफाई किया ये भी बता दो मुझे। x इक्वल टू 0 कहा है और h की वैल्यू 0.02 कही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस h। डन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे कैसा, सबसे पहला k1, k1 इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ x0 y0, 0.2 x0 y0 0 प्लस 1 0.2। अब ये 0.2 वैल्यू मिली, k2 फाइंड आउट किया, h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h बाई 2 y0 प्लस k1 बाई 2। वैल्यूज पुटअप करते जाओ, 0.2 0 प्लस 0.2 बाई 2 प्लस 1 प्लस 0.2 बाई 2 0.24। k3 h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h बाई 2 y0 प्लस k2 बाई 2, 0.2 इन ब्रैकेट 0 प्लस 0.2 बाई 2 प्लस 1 0.24 बाई 2। जो 0.24 आंसर मिला है वो आंसर क्या मिला, 0.22 0.244। अब ये वैल्यू फिर से K4 में पुट कर, K4 में पुट करने के बाद क्या मिला आंसर, आंसर मिला ये। अंडरस्टूड। अब आंसर क्या मिला ये। वैल्यूज पुट करने के बाद ये K की वैल्यू लिखो और फाइनली आपका आंसर आपके साथ, समझे। फाइनली आपका आंसर आपके साथ है। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर क्या है, 1/6 0.2 2 इंटू 0.24 2 इंटू 0.224 0.28888। फाइनल आंसर 0. क्लियर कर देता हूँ, 0.2428। अब ये 0.2428 आया, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या थी, y इक्वल टू वाई जीरो प्लस के। अब इसमें y0 ऐड कर दो, यानी पुराना 1.2428। सो व्हाट इज दिस केस, जब x इक्वल टू 0.2 तो y इक्वल टू 1.2428। लेट अस चेक वंस अगेन। हाँ, when y x equal to 0.2 y equal to 1.4 सॉरी 1.22, ये नहीं है 1.22। आपको आंसर क्या मिला, 1.2428, यानी नियर अबाउट सेम। हर एक मेथड का अलग अलग खुद का स्ट्रक्चर है, इसीलिए हर एक मेथड अलग अलग हिसाब से आपको आंसर देगी। तो आपको उस मेथड के साथ उसको डील करना है, ना कि अपना लॉजिक लगाना है। अंडरस्टूड। तो हर एक मेथड का आंसर अलग है माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए उसी को उसके हिसाब से करते जाओ। करते जाते हुए आपको चीज़ें आइडेंटिफाई होंगी, विदाउट उसका आप कुछ एनालाइज नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो अब ये मेथड आपको समझ में आ गई। हालांकि ये सबसे आसान मेथड होने के कारण मैं बाकी सभी प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। क्लियर हुआ इतना, बाकी सभी प्रॉब्लम आप क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। एंड हम यहीं पर ये सिस्टम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।